दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। अ, डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल है आपके जीवन में। डेस्टिनी प्लेज़ अ ह्यूज रोल इन योर सक्सेस। जो लोग आप एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, वो तो ज़रूर इस बात से मेरे इत्तेफ़ाक रखेंगे। कभी-कभी आप स्क्रीन आउट इसलिए भी हो जाते हैं बिकॉज़ फॉर सम रीज़न्स ऑन दैट पर्टिकुलर डे और ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट थिंग्स डिडन्ट वर्क आउट। मेबी दैट इज़ डेस्टिनी। तो मेरा आपसे आज के संवाद का विषय ये नहीं है कि आप डेस्टिनी के चलते सब छोड़ के बैठ जाएँ, बिल्कुल भी ना छोड़ें, प्रयास जारी रखें। तो कहते हैं ना, लक फेवर्स द ब्रेव। सो एज़ अ ब्रेव पर्सन ट्रायल अपनी जारी रखें। मेरा आपसे आज के संवाद का एक दूसरा भी मन था, वो ये है कि आप लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन में कन्फ्यूज़िंग। द प्रॉब्लम इज़ एवरीवन एंड एनीवन इज़ टॉकिंग एंड टॉकिंग व्हाटएवर कम्स टू देयर माइंड। आप सिंपल सा सवाल ये याद रखिए मेरा, लॉजिक, रीजनिंग एबिलिटी, लॉजिक। आप स्वयं समझदार हैं, यू आर योरसेल्फ वेरी इंटेलिजेंट। लॉजिकली डज दिस लाइन और स्टेटमेंट जस्टिफाई यू और नॉट? If it justifies your queries, you don't need to ask anything to anyone. You ask for the logic. Someone says कि आप अपनी स्टोरीज को PIQ से लिंक कर दो. What nonsense is this crap? I don't understand. Whoever is talking about it, whoever is telling you to do that, he actually doesn't have anything to do with SSB. जिसका SSB से कोई लेना देना नहीं है, जिसने DIPR के दर्शन नहीं किए हैं, जिसको DIPR से अच्छे से रगड़ा नहीं मिला है, वही ऐसी बातें कर सकता है। और कोई समझदार व्यक्ति तो ऐसी बातें कर ही नहीं सकता है कि आप PIQ से अपने स्टोरीज को लिंक कीजिए। PIQ आपका है, स्टोरी आप लिख रहे हैं, लिंक क्या कीजिए मतलब? इट विल बी योर स्टोरी, इट विल बी लिंक टू योर स्टोरी ऑब्वियसली। प्रॉब्लम कहाँ आती है? अब आप PIQ में तो कभी फार्मिंग किए नहीं है। You've never been, maybe you're a city boy, you've never seen the farm, or you have never been involved in any activities that involves farming. So how will you link now to PIQ to a farming? I don't understand this. तो वो फार्मिंग वाला पिक्चर आ गया, आपको किसान दिख रहा है, तो आप उससे लिंक नहीं कर पाएंगे। यही है आपका टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन। अरे जब साइकोलॉजिस्ट आपको बोल ही रहा है, साफ और स्वच्छ शब्दों में साइकोलॉजिस्ट आपको बोलते हैं, इट इज द टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन। उसका क्या मतलब है? इट इज द टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन मीन्स व्हाट? इट मीन्स it is about what imagination comes to your mind. What imagination comes to your mind will vary from various facets of your life, from your own life experiences, the kind of school that you have been, the kind of family that you have lived, the neighborhood, the place. But more than that, it will vary and depend upon the kind of exposure that you have given to yourself or circumstances have given to you. For example, suppose uh, you have been to a good school and you have been, doing a lot of participation in extempore competitions, quiz competitions. You have seen these events being conducted. You have been part of it. You have seen people speaking on platforms. You have been inspired to speak. You have that expertise. But beyond that, also you learn a thing. What you may not have done, you learn through newspapers that you read. In newspapers, if you happen to read about somebody achieving a goal against all odds, ऐसे आपको कई कहानियां पढ़ने को मिलेंगी कि daughter of auto rickshaw driver topping the NEET paper, or somebody from a very, very ordinary family making it to IAS, topping the charts, ranks. How does things happen? It requires a lot of perseverance, hard work.
efforts, true stories. You have been to those true stories. You have been through those true stories through newspaper. A glimpse of it has stayed back with you. It will. It's a true story. It will inspire you. So your imagination and thought process will not be dependent upon only the things that you have been doing or you have been made to do or which you have experienced firsthand, but will also depend upon things that you've observed, absorbed, understood, relayed or replayed in your mind, accepted it, kind of experiences that you might have come across while watching a movie. Because certain emotional scenes in a movie might drive you to the extent of catharsis. There are many people you will see they end up crying watching a movie. Now they know it is a movie, they know it is a fictionalization, they know, but it still moves them. So you undergo an emotion through documentaries, through your own life journey and life journey of the people around you, your father, your mother, your brother, your elder brother, your elder sister, their resilience, their fighting back, your neighborhood friends, friends, particularly the friends with whom you spend most of your time. So everyone and people around you in every way tend to inspire you or also in certain cases demotivate you. Means there is effect of everything and anything on your mind. It is observing everything. How it processes that is what a perception, mental process. सो कहने का मतलब ये है कि आप रिस्ट्रिक्टेड थॉट से स्टोरी नहीं लिख सकते हैं. साइकोलॉजिस्ट अपनी ब्रीफिंग में ये बात बहुत क्लियर बोलते हैं कि इट इज टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन, डू नॉट रिस्ट्रिक्ट योर थॉट्स. रिस्ट्रिक्टेड थॉट क्या आएगा? अगर कोई आपको सिखा दे कि भाई ऐसा कुछ दिखे तो ऐसा कुछ लिख दो, तो मान लो आपको किसान दिख रहा है तो उसको आपको किसानी दिखा ही सिखा ही देना है. आज किसान का मतलब है मूर्ख, किसान का मतलब है अनपढ़, किसान का मतलब आपको उसको सिखाना है, परंतु ऐसा सच नहीं है. आप अगर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप उससे अपने सब्जेक्ट के बारे में सीख सकते हैं, बिकॉज़ ऑफ हिज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे देखते हैं. हर जगह आप किसान को पीएम आवास योजना और ऋण योजना सिखाएँ ऐसा ज़रूरी नहीं है. वो सब्जेक्ट क्या बोल रहा है, वो पिक्चर क्या बोल रही है, उस पे डिपेंड. इसीलिए आपका टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन कि आपके ज़हन में क्या आता है? आपके ज़हन में वही आएगा जो आपके मस्तिष्क पटल पे बैठा हुआ है. अगर वो आ रहा है, इट विल बी ऑटोमैटिकली लिंक्ड टू योर PIQ एज़ द सी, दो देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट एंड नो रिस्ट्रिक्शन. बट अगर आप वो थॉट्स लेके आएँगे जो आपके मस्तिष्क में नहीं हैं, जो आप नहीं हैं, परंतु आपके ऊपर फोर्स किया गया है, यानी कि सुपर इम्पोजिंग है, it'll appear that way. फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज होना ही चाहिए. टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन बोलता है वो, इट इज द टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन. डू नॉट रिस्ट्रिक्ट योर थॉट्स. इट इज नॉट द टेस्ट ऑफ योर इंग्लिश और योर राइटिंग स्किल्स. कितना क्लियर बातें कर रहा है वो, आप सुन ही नहीं रहे हैं. तो कुछ अज्ञान लोगों से, और कैसे मैं शब्द का इस्तेमाल करूं थोड़ा ऑफेंसिव ना भी हो, I will say people who are into this business without any justification, mostly, थोड़ा आपको बचने की जरूरत है. और आप ऐसे लोगों की ही बातें सुनिए जिनको सब्जेक्ट पता है, जो DIPR में गए हैं. मैं सिंपल आपको रूल दे देता हूँ, जो भी DIPR में गया है वो मूर्खता वाली बातें तो नहीं करेगा. भले उसके बोलने के अंदाज में वो बात ना हो, वो रील ना बना पा रहा हो जैसा
कि ये बना दे रहे हैं आपको भ्रमित करने के लिए, परंतु बात वो सही करेंगे। आई होप यू गॉट माय पॉइंट और बातें करेंगे इस पे। धन्यवाद। जय हिंद।